this is the first article from Economy, December magazine. So that is NPAs. Okay. So it was recently in the news because RBI ने एक report publish किया था, that is report on trend and progress of banking in India 21-22. तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये पाया कि जो ग्रॉस एनपीएज है those declined from 9% in 2017-18 to 5% currently. So let's see, बैंक के पास क्या होता है? तो बैंक के पास there are only two things, that is it accepts deposits and it lends loans. That is the primary role of bank. तो ये एनपीएस क्या है? तो एनपीएस इज समथिंग दैट इज जो भी आपका लोन या फिर एडवांस आपने लिया है उसका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट आपने ओवरड्यू कर दिया है बियॉन्ड 90 डेज. सो दैट इज 1 quarter and this is classified as NPAs. In case of agriculture, it is slightly different. For NPA in agriculture, it has to be generally 2 crop season for short duration and 1 crop season when it comes to a long duration crop. So that is agricultural ka NPA. Now, based on NPA period, there are classes of NPAs. So, like I said, there are assets of banks. So, one is standard asset and another is non-performing asset. Standard asset is something कि जिसका कोई there is no risk as such. There is a timely interest payment that are being done. For NPAs, there are three categories. जैसे मैंने बोला कि beyond 90 days. So first is substandard asset, so which is uh, which is less than 12 months. Then there is doubtful asset when asset has gone about 12 months period. And then there is a loss asset. So loss asset is something like the loss has been identified by a bank or internal or external auditor or even RBI. Okay, but the amount has not been written off wholly or partly yet. So that is a loss asset. So now let's see NPAs. NPAs का current status क्या है इंडिया में? So we know कि report said कि 5% is currently and in 2016 banking NPAs reached to 9%. तो उसका reason थे, reasons were first inability of banks to restructure the projects, then poor governance and poor operational efficiencies, then increased number of stalled and stressed projects because of the internal and external reasons, then cancellation of coal blocks, limited off-take power by discoms, then high leverage ratio of corporates leading to funding gaps. So leverage ratio is any one of the several financial measurements that assesses the ability of a company to meet a financial obligation. तो जनरली ऐसा होता है कि a financial leverage ratio, if it is less than 1, then it is usually considered as a good by industry standards. If leverage ratio is higher than 1, then it can cause a company to be considered a risky investment. So that is a leverage ratio. And if it is more than 2, then it is a cause of concern. Then another reason is inability of banks to restructure the projects even when there is a viable ground, sorry, even when found viable due to regulatory constraints. So these are the reasons for NPAs. But now after that we have seen कि NPA decrease हो रहा है. So why? So in the last few years we have seen that there is a improved asset quality. This is because of easing of the legacy NPAs. Then there legacy NPAs legacy NPAs is something like any NPA or asset that has remained on a company's balance sheet for a long time. Okay, and since it has become obsolete and has lost nearly all the initial values. So this is the legacy NPA. So it has been on the company's balance sheet for a really long time. And उसमें हमने ease किया, that's why it is improved the asset quality of the banks. Then there has been greater transparency in asset recognition and upgradations and write-offs are done more frequently. Now, in last 5 years, we have observed that bank have written off bad loans worth of more than 10 lakh crores, and that means that also means that bank has have recovered an aggregate amount of more than 6.5 lakh crore. तो हमें ये पता है कि जो राइट ऑफ करने की अमाउंट है वो ज्यादा ही होगी because banks are getting some loss there. So aggregate amount that they have recovered is 6.5 lakh crore. Now another thing that we have observed is enhanced profitability compared to 2014-15 levels. Bank credit growth has been the 10-year high. Then slippage is we have seen because in the last 5 years there has been lowering in slippage because of enhanced credit monitoring processes.
which are coupled with the diversification of bank's investment portfolio. So slippage is something like something which कि आपने एक expected price किया trade का and आपको market में जाके उससे कम price मिला. So whatever is the difference between those values, that is the slippage. तो ये slippage कम हो गया banks का. Now, because of higher provisioning, we have seen that there is a augmentation of capital buffers. Provisioning, पता है हमें, provisioning is something like booking a provision means that the bank recognizes the loss of on the loan ahead of the time and you provision it. So कैसे करते हैं कि bank use their capital to absorb these losses and by booking a provision, the bank takes a loss and hence reduces its capital by the amount of money that it will not be able to collect from the client. So this is the provisioning. एंड सिंस ये हायर प्रोविजनिंग होता है तो हमारे पास कैपिटल बफर्स बहुत ज्यादा ऑगमेंट बैंक्स कर सकते हैं एंड देन वी हैव आल्सो सीन इंडिकेटर्स लाइक सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड दीज आर सो इस इंडिकेटर्स में भी साउंडनेस आ गई है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स दैट वर टेकन टू एड्रेस द लेगेसी एनपीएस. सो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया है. उस पे कैपिटल इन्फ्यूजन इस तरह से किया है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए. बेजल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो टीयर 1 में है और टीयर 1 की सीएआर दैट हैज टू बी 12.9%. नाउ आरबीआई ने हमने ये भी देखा कि इंद्रधनुष प्लान लॉन्च किया था टू रिवैम्प द फंक्शनिंग ऑफ पीएसपीज. तो उसमें 7 पॉइंट्स ये है कि फर्स्ट गवर्नेंस रिफॉर्म्स, देन फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी. तो जैसे कॉर्पोरेट में केपीआईज होते हैं वैसे बैंकिंग में भी उन्होंने सॉरी पीएसबी में ही उन्होंने केपीआई डाल दिए. देन देयर इज एम्पावरमेंट दैट इज नो इंटरफियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एज सच. देन देयर हैज उन्होंने डिस्ट्रेस किया एसेट्स डिस्ट्रेसिंग किया. दैट मींस एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ मेजर रिसिपिएंट्स ऑफ पीएसबीज फंडिंग्स बाय स्ट्रेंथनिंग रिस्क कंट्रोल मेजर्स एंड एनपीए डिस्क्लोजर्स. Capitalization किया उन्होंने, that is to adequately capitalize all the banks to keep a safe buffer over and above the minimum norms of Basel III Convention. They also formed Bank Board Bureau, that is to replace appointments board for the appointment of whole-time directors as well as non-executive chairman of PSBs. Recently उस पे amendment हुआ था, तो कोई बता सकता है वो amendment क्या था कि जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो था उसको रिप्लेस किसने किया है? Okay, so the body is known as FSIB, that is Financial Services Institutions Board. तो ब्यूरो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो. सो बहुत छोटा सा डिफरेंस है. ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था दैट वाज जस्ट लुकिंग एट द शेड्यूल्ड बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स इन जनरल. बट देन लेट्स से जो नाबार्ड जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके भी डायरेक्टर्स गवर्नमेंट को फिक्स करने थे, अपॉइंट करने थे. सो दैट पर्टिकुलर बैंक बोर्ड ब्यूरो दैट वाज नॉट कमिंग अंडर इट. सो ये चैलेंज हो गया था and that's why government came up with this FSIB to appoint all sorts of board members when it comes to banking. Then let's see और क्या initiatives क्या लिए. Then we have seen consolidation of PSBs through large mergers. Then bad bank setup किया. bad bank से दो part होते हैं, that is NARCL and IDRCL. तो simply बताता हूँ कि NARCL is government owned. मोस्टली शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं एंड जो आईडीआरसीएल है वो प्राइवेटली ओन्ड होती है. गवर्नमेंट के शेयर्स 50% से कम होते हैं. देन वी हैड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 फॉर टाइम बाउंड मार्केट मैकेनिज्म एंड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स इन फाइनेंशियल स्ट्रेसेस. तो बिकॉज ऑफ दिस आईबीसी दिस जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे they were able to apply for this CIRP, that is corporate insolvency resolution processes. तो insolvency से जल्दी बाहर आने की प्रोसेस जो है वो जल्दी in time bound manner because of this code possible हो गया ये सारी चीजें. Then IBC is also IBC further amended this code to take care of the MSMEs. जो corporate के लिए जो rules लगा है those cannot be applied to the MSMEs because MSMEs के पास ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल के कनेक्शंस होते हैं
लॉजिस्टिक्स उनके इन प्लेस होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस दिस प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. तो ये प्री पैकेज्ड है, वो आईबीसी में एक अमेंडमेंट चेंज करके एमएसएमईज में अप्लाई किया उन्होंने. Then we have ease reforms, that is enhanced access and service and excellence for PSBs which are aimed at institutionalizing clean and smart banking. We know this regulatory sandbox by RBI. Sandbox जैसे हमें पता है कि बच्चों के खेलने की जगह होती है, तो आरबीआई ने वैसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया बिकॉज इट वांटेड टू चेक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेट्स से डिजिटल बैंकिंग एक्सेट्रा. तो यहाँ पे सैंडबॉक्स में limited number of people, let's say 200 people will be checking one particular application. So that is why that is this initiative is by RBI. But still there are some concerns when it comes to NPA. That's the first one is because inflation in all over the globe, it is all-time high because of the COVID-19 and supply chain risk. The borrowing cost has been increasing because of the synchronized monetary policy tightening. तो ऑल ओवर द ग्लोब सेंट्रल बैंक्स जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं. आईबीसी फ्रेमवर्क जो हमने बनाया था टाइमली रिजोल्यूशन के लिए, उसका इफेक्टिवनेस कम होते दिख रहा है, एंड द टाइम हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग. सो जो हम जिसके लिए हमने बनाया था उसके अपोजिट काम करता दिख रहा है हमें. इट इज ऑल्सो सीन दैट देयर इज अ डिक्लाइनिंग रेट्स ऑफ रिकवरी, एंड हमें ये पता है कि जो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, तो जो सार्फेसी एक्ट के अंदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई थी, दे हैव ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, उनकी जो सेल्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हुए ओवर द इयर्स. तो उसका डेटा दिया है कि 2021-22 में सिर्फ 3.2% ऑफ ग्रॉस प्रीवियस ईयर्स GNPAs were sold to ARCs. So even banks, commercial banks are not very confident on ARCs, or they feel that whatever profits that they are getting, it's less. So that's why they are also not selling it to ARCs. The share of unsecured credit in total credit has been increasing since 2015. So these are the concerns when it comes to NPAs. So इसमें way forward हम क्या बोल सकते हैं कि due diligence and robust credit appraisal has become the most important part when it comes to limiting the credit risk. So उसके लिए we need to have effective IBC framework, because जितना जल्दी हम टाइमली रिजोल्यूशन करेंगे उतना ही उसका जो एसेट डिप्रिसिएशन है वो कम होगा. Then we have to have convergence of corporate governance practices between PSBs and private sectors. उसके लिए एक substantiation ऐसा दिया है कि जो GNPAs है PSB के, those are 6.5%. When it comes to private banks, it is only 3.3%. So there is something that PSBs can learn from private banks. Again, we also have to use newer technologies. उसका एक एग्जांपल है कि हमने रिसेंटली सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो था फॉर ऑटोमेटिक डेटा रिपोर्टिंग बाय रेगुलेटरी एंटिटीज, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना चाहिए. देन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, इसके थ्रू हमें फ्रॉड डिटेक्शन जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज करती है, तो हमें छोटे लेवल तक ये आर्टिफिशियल AI/ML का टेक्निक्स यूज करना चाहिए टू डिटरमाइन फ्रॉड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स. एंड फाइनली वी हैव टू मॉनिटर द स्लिपेज इन restructured assets, which is only possible by strong vigilance from RBI. So these are the things which are done in NPAs till now. Cool है, very nicely explained. एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा. जैसे सर ने बोला कैटेगराइजेशन किया एनपीए का, तो एनपीए होने से पहले लाइक 90 डेज तक अगर आपने नहीं पे किया प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तो उसके बाद एनपीए बन जाता है. बट एनपीए होने से पहले भी कुछ एक स्टेजेस होती है जिन्हें हम बोलते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट. ठीक है, तो SMA 3 कैटेगरीज होती है, SMA 0, SMA 1 और SMA 2. ठीक है, और ये 30 डेज के पीरियड होते हैं. लाइक 0 से 30 अगर आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं पे किया तो दिस विल बी काउंटेड एज SMA 0. फिर SMA 1 जो है वो नेक्स्ट 30 डेज, और फिर ऐसे ही जो लास्ट 30 डेज का पीरियड अप टिल द 90 डेज वो SMA 2 काउंट होगा. उसके बाद एनपीए बन जाएगा. एंड फिर सर ने जैसा बताया कि सब स्टैंडर्ड एसेट रहेगा, फिर डाउटफुल एसेट और फिर लॉस एसेट. अब यहाँ पे लेट्स से कोई लोन जो है लॉस एसेट बन गया, उसके बाद बैंक क्या करते हैं, तो कुछ साल कोशिश करते हैं, अगर वो रिकवर हो सकता है तो रिकवर करने की कोशिश करते हैं.
लेकिन जनरली अगर किसी लोन को लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया गया, इसका मतलब उसकी रिकवरी करने में उल्टा ज्यादा पैसा जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव। सो इस सेंस में या तो वो एआरसी को सेल कर दिया जाता है, और अगर उसको भी सेल नहीं करते तो उस लोन को राइट ऑफ कर देता है बैंक। तो राइट ऑफ एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसके थ्रू जो बैंक्स होते हैं अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर देते हैं, और उससे एक तरीके से आर्टिफिशियली ऐसा लगता है कि बैंक्स आर डूइंग गुड, क्योंकि वो जो एनपीए था वो गायब हो जाता है। सो ये बैंक का एटलीस्ट इंडियन स्टोरी के अंदर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर के काफी इंप्रूव हो रहा है तेजी से ग्रॉस एनपीए। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि लोन को बहुत लार्ज स्केल पे राइट ऑफ किया गया, विच इज नॉट वेरी प्रूडेंट प्रैक्टिस, ओके। बट एक जनरल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, तो इतना डिटेल में हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये चीज याद रखना। एंड सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है उसने रिप्लेस कर लिया बीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो को। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। एनी मोर डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक? ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, डिजिटल लेंडिंग। सो अभी आरबीआई ने गाइडलाइंस इश्यू की है डिजिटल लेंडिंग के ऊपर, विच विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम December 1। एंड जो भी डिजिटल लेंडिंग से एसोसिएटेड प्लेयर्स हैं, दे हैव टू कंप्लाई विद दिस रूल्स बाय November 30, ओके। सो व्हाट इज डिजिटल लेंडिंग? सो नाम से ही पता लग रहा है कि एक रिमोट ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस है जहां पे हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लोन प्रोवाइड कराते हैं, या लोन के अराउंड जो पूरा इकोसिस्टम है, जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन, क्रेडिट असेसमेंट, लोन अप्रूवल, लोन का डिसबर्समेंट, उसकी रिकवरी, और कोई भी एसोसिएटेड कस्टमर सर्विस है, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ओके। यानी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके पूरा जो लेंडिंग इकोसिस्टम है उसकी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे कोई पर्सन आपके घर पे विजिट करने भी नहीं आएगा, आप सीधा फोन के जरिए या और किसी डिजिटल मीन्स के थ्रू आप जो पूरा लोन के रिलेटेड सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। ओनली केस जहां पे कोई इंसान आपके घर पे आ सकता है वो होगा तब जब आपने लोन को रिपे नहीं किया है, ओके। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो प्लीज रिपे करिए, नहीं तो डिजिटल लेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये फैसिलिटेट कौन करता है? ये फैसिलिटेट करते हैं डिजिटल लेंडिंग एप्स या प्लेटफॉर्म्स। सो अब कोविड के दौरान हमने देखा लार्ज स्केल पे राइज हुआ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स का। रीजन क्या था कि बहुत सारे लोगों को एक तो पेंडेमिक के दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसीज आ गई थी, दूसरा जो बैंक्स थे उनका एक्सेस लिमिटेड हो गया था। तो ऐसे में ये जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है इनका बहुत तेजी से राइज हुआ, और इसी दौरान बहुत सारी फेक कंपनीज भी राइज हो गई। तो न्यूज़पेपर में आपने कई बार पढ़ा होगा कि चाइनीज फेक चाइनीज ऐप जो थी वो लोन प्रोवाइड करी थी या लोन स्कैम करी थी लोगों के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, एंड विच वाज हार्मफुल टू द जनरल पब्लिक, ओके। सो डीएलएस क्या है? डीएलएस डिजिटल लेंडिंग एप्स या प्लेटफॉर्म क्या है? दीज आर वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी। अब रेगुलेटेड एंटिटी कौन है? दीज आर बैंक्स और एनबीएफसीज, जो बेसिकली जिनके पास पैसा है और पैसे को वो आगे कस्टमर्स या जो बोरोवर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। अब एक हो गया डिजिटल लेंडिंग एप्स डीएलएस, दूसरा हो गया रेगुलेटेड एंटिटीज जिसमें बैंक्स और एनबीएफसी आते हैं जिनके पास पैसा होता है। एक और तीसरी एंटिटी होती है कॉल्ड लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। अब लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? ये जनरली ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोन के अराउंड बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एक्सेप्ट द कैश, क्योंकि कैश तो बैंक्स और एनबीएफसी के पास ज्यादा बेटर है, वो लोग इस सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन उसके अराउंड जो सर्विसेज होते हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड एजेंसीज बना दी जाती है या क्रिएट होती है, और ये केटर करती है बैंक्स को। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कभी फोन आता है कि हम आपको सस्ते में लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। तो अगर आप उसमें हाँ बोल देते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको बैंक से कनेक्ट करवा देंगे, या एक उनके पास ऑलरेडी बैंक के साथ टाई अप होता है। सपोज एग्जांपल ले लो एसबीआई का, तो एसबीआई से कभी भी आपको डायरेक्टली फोन नहीं आएगा कि आप सर लोन ले लो। जनरली एसबीआई क्या करेगी, किसी लेंडिंग एजेंसी को हायर कर लेगी या लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर लेगी, तो वो लोन प्रोवाइड कराने का काम कराएगा लोन सर्विस प्रोवाइडर, ओके। जो आपको फोन कर रहा है ही इज बेसिकली टॉकिंग फ्रॉम सम एजेंसी जिसने बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है।
तो इसे हम लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। या और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है, जैसे जिस केस में हम बात करें कि वो आपको फोन करके कोशिश कर रहा है आपको वो लोन बेचने की, तो वो कस्टमर एक्विजिशन का तरीका है। फिर क्रेडिट असेसमेंट भी करता है, जैसे सिबिल स्कोर आपका क्या है, जिसके हिसाब से पता लगेगा कि आप लोन पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो दीज आर ऑल द सर्विसेज दैट द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर वर्क्स। सो आई होप ये 3 एंटिटीज क्लियर होगी, डीएलएज, रेगुलेटेड एंटिटीज एंड लास्टली लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो हम क्यों देख रहे हैं कि डिजिटल लेंडिंग में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है? तो पहला इसका रीजन है कि इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, जैसे कि यूपीआई। ओके, फिर कंपनीज में बात करें तो बहुत सारी कंपनीज के आप खुद ही एग्जांपल दे सकते हो, भारत पे, फोन पे, गूगल पे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फिर इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया है विद कमिंग ऑफ 4G एंड नाउ 5G। तो जो इंटरनेट की स्पीड थी और उसका जो पेनिट्रेशन है दोनों ही बढ़ गया, प्लस स्मार्टफोन का यूसेज कंट्री में काफी तेजी से राइज हो रहा है। एंड देन लास्टली आई थिंक एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या उसको ईज ऑफ जो ट्रांजैक्शन है या ईज ऑफ लिविंग चाहिए, वो भी डिजिटल लेंडिंग के थ्रू ज्यादा बेटर केटर हो रहा है कि अब किसी पर्सन को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है या लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, सीधा बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली आपको लोन मिल सकता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग। इनफैक्ट एक रिपोर्ट है, आरबीआई का ही रिपोर्ट है, that says digital lending market in India is expected to grow at a rate of 48% by 2023. So which is a very handsome growth. So यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि जब राइज हुआ लेंडिंग एप्स का, तो बहुत सारी फेक कंपनीज भी या फेक स्कैम कंपनीज जो थी वो भी राइज हो गई। एंड आरबीआई ने ऐसे 600 इलीगल लेंडिंग एप्स को 2021 में आइडेंटिफाई करके क्लोज करवाया। एंड न जाने ऐसी कितनी और एप्स भी अभी भी वर्क कर रही होंगी। सो ये एक केस हो गया कि वो स्कैम कर रहे थे कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को। नेक्स्ट कंसर्न थे डाटा प्राइवेसी के। तो जनरली आपने देखा होगा कि आप अगर लेट्स से आप बैंक किसी भी बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाते हो या किसी और थर्ड पार्टी एनबीएफसी के ऊपर जाते हो और आप गलती से अपना जो फोन नंबर है वहां पे डाल देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे कॉल्स आने लग जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। तो ये टिपिकल केस है कि कैसा आपकी जो डाटा प्राइवेसी है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है कि आपने डेटा एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए प्रोवाइड किया, लेकिन आपका जो डेटा है वो फिर आगे किसी को बेच दिया गया और फिर आपको ऐसे अनसॉलिसिटेड कॉल्स आ रहे हैं लोन्स के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से डेटा प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। सो अभी क्या होता है, जनरली जब बैंक्स जो होते हैं, जैसे आप अपना अकाउंट खोलते हो तो बैंक के पास आपकी डिटेल आ जाती है। तो बैंक्स कभी कभी क्या करते हैं, दे प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, और फिर वो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनीज होती है, ज्यादा फॉर्मल होती नहीं है, तो ये इनमें से जो एम्प्लॉयज होते हैं ये आपस में लीक कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को, और इस तरीके से आपके पास रेगुलरली, अगर आपने कहीं एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आपके पास रेगुलरली कॉल आते रहते हैं। फर्दर ये फिनटेक जो कंपनीज हैं, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो ये पूरे का पूरा पैटर्न पता लगा लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रू कॉलर है आपके फोन के अंदर, सो ट्रू कॉलर जानता है कि आप, क्योंकि इट कैन रीड योर मैसेजेस ऑल्सो, सो ये वो ट्रू कॉलर जो है पूरी तरीके से जानता है कि आपके पास कितना डेली बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो और ट्रांजेक्शन का क्या वॉल्यूम है और क्या वैल्यू है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको लोन की रिकमेंडेशन दे सकता है। जैसे आपने कभी और देखा भी होगा कि ट्रू कॉलर पे लिखा रहा है कि वी आर प्रोवाइडिंग लोन्स, तो वो आपको लोन भी केटर करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप किस टाइप की स्पेंडिंग करते हो, कब स्पेंडिंग करते हो। तो उसके पास आपकी सारी जो बिहेवियरल नॉलेज है वो है, और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके वो आपको बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि कंज्यूमर के लिए लॉन्ग रन में शायद नुकसानदायक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अनरेगुलेटेड एंटिटीज है। तो जैसा हमने बात किया कि बहुत सारी फेक कंपनीज खुल गई थी एंड वो स्कैम कर रही थी, सो दैट इज वन इश्यू, क्योंकि ये जो एंटिटीज हैं ना तो ये आरबीआई के अंडर आती है ना किसी और लॉ के अंडर वर्क कर रही है। सो उस सेंस में दीज अनरेगुलेटेड एंटिटीज वर आउट ऑफ एनी रेगुलेटरी परव्यू। नेक्स्ट अनरिपोर्टेड प्रोडक्ट्स है। तो अब जो रेगुलेटेड एंटिटीज भी हैं या रेगुलेटेड यूनिट्स हैं या जो डिजिटल लोन की जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं जो कि
करंटली हमारे जो रेगुलेटेड रिजीम है उसके अंडर ही नहीं आते, ठीक है। यानी कहने का मतलब कंपनी तो रेगुलेटेड है, लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट सेल करिए जो अभी तक रेगुलेट नहीं है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है वो। जैसे बाय नाउ पे लेटर एक लोन है, जैसे अमेजोन वगैरह पे आपने देखा होगा कई बार, ये ऑप्शन आता है कि बाय नाउ एंड पे लेटर। सो दिस डज, इसके अंदर जो सर्विस अवेल अगर आप करते हो तो दिस डज नॉट गो टू क्रेडिट ब्यूरोज, यानी क्रेडिट ब्यूरोज के पास ये इंफॉर्मेशन जाती ही नहीं है, आपके सिबिल स्कोर में ये चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। सो ये बाय नाउ पे लेटर जो है एक तरह का पॉइंट ऑफ सेल क्रेडिट है, जहां पे बायर को टिपिकली एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप 15 से 30 दिन के अंदर इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये बाय नाउ पे लेटर जो है क्रेडिट ब्यूरोज के पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं जाता है। सो ये अनरिपोर्टेड प्रोडक्ट्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, राइज इन क्रिप्टो करेंसीज है। तो डिजिटल करेंसीज जैसा कि आप जानते हो वो तो किसी भी सॉवरेन कंट्री के अंडर नहीं रेगुलेट हो सकती, सो वो भी एक इश्यू पोज कर रहा है। ऑलराइट, सो ये था इस इकोसिस्टम के बारे में। लेकिन जो डिजिटल लेंडिंग है उसके कुछ फायदे भी है। ये तो हमने नुकसान की बात कर ली, अब फायदे क्या क्या है। पहला फायदा ये है कि 24/7 ऑपरेशन होता है, ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे अगर आप लेट्स से किसी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप रात को 12 बजे भी उस पर साइन इन कर सकते हो, अनलाइक अ बैंक जहां पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही आप अकाउंट खुलवा सकते हो। सो ये एक सर्विस है। फिर सीमलेस बोरोइंग है, कोई भी आपके पर्सन घर पे नहीं आएगा, सीधा डिजिटल मीडियम के थ्रू ही आपका जो लोन है आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूसिविटी है बाय सपोर्टिंग जीरो क्रेडिट हिस्ट्री बोरोवर्स, क्योंकि जनरली बैंक्स जो होते हैं वो नहीं लोन देते ऐसे लोगों को जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता या जिनका कोई सिबिल स्कोर ही नहीं होता। तो ऐसे लोग बेचारे वो कहाँ से लोन ले, तो उनको हेल्प करता है। जैसे भारत पे एक कंपनी है तो वो यही करती है, वो क्या करती है कि शॉपकीपर के पास लगा देती है अपना क्यूआर कोड, एंड जैसे जैसे लोग उस क्यूआर कोड पे स्कैन करके उस शॉपकीपर को पैसा भेजते हैं तो उसके थ्रू वो एक पूरा एक प्रोफाइल तैयार कर लेती है एक शॉपकीपर की। तो अब उस शॉपकीपर के पास अगर कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यानी अगर उसने कभी कोई फॉर्मल लोन नहीं लिया है तो बैंक तो उससे लोन देगा नहीं। लेकिन भारत पे को पता है कि ये डेली जो शॉपकीपर है इतना पैसा कमा रहा है, तो उसके बेसिस पे भारत पे कंपनी जो है वो शॉपकीपर को लोन दे देती है। एंड जैसे ही लोन के लिए एग्री कर देता है शॉपकीपर, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई यूपीआई उस क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करता है शॉपकीपर को, तो जो लोन का अमाउंट है या जो ईएमआई बन रहा था वो कट के कंपनी के पास चला जाएगा वो शेयर जो भी ईएमआई बन रहा था, और बाकी जो पैसा बचा वो शॉपकीपर के पास चला जाएगा। तो दैट्स हाउ दिस कंपनी वाज वर्किंग कॉल्ड भारत पे। तो एक केस स्टडी बता रहा हूँ। नेक्स्ट, फास्टर लोन क्लोजर हो जाता है, इजीली क्लोज कर सकते हो, एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लोन ओरिजिनेशंस। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर व्हिच यू कैन ऐड, ठीक है। नेक्स्ट, गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, करंटली ये जो गाइडलाइन जो आरबीआई ने बोला है एक्सटेंड होगी, दिस विल एक्सटेंड टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो इन सब के ऊपर कंप्लाई होगी। अब ये जो की प्रोविजंस है, दीज आर वेरी निटी-ग्रिटी डिटेल्स व्हिच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इनफैक्ट नॉट इवन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। बस इसमें कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी कई बार क्या करता है, ये टर्म्स एक बाउंसर की तरह मार देता है कि बताओ ये टर्म किस चीज से एसोसिएटेड है। तो इस तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टर्म है यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट का मतलब है जब भी कोई रेगुलेटेड एंटिटी किसी बोरोवर को कोई भी डिजिटल लेंडिंग के थ्रू कोई प्रोडक्ट बेचा है या कोई लोन बेचा है, तो वहां पे की फैक्ट स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उसको, बोरोवर को, ठीक है। जैसे मैंने लोन लिया तो मुझे की फैक्ट स्टेटमेंट मिलेगा। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ डिजिटल लोन, कि लोन लेने में जो भी कॉस्ट लगेगा वो सब उसमें लिखा होगा, इन फॉर्म ऑफ एनुअल परसेंटेज रेट, कि एनुअली मुझे अगर मैंने लोन लिया तो इस हिसाब से मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई ग्रीवेंस होती है तो मेरे को किसके पास उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करवाना है। एंड लास्टली, कूलिंग ऑफ और लुकअप पीरियड। कूलिंग ऑफ मतलब कि आप कितने टाइम के अंदर जो है लोन को फास्टर रीपे कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी फिनटेक की जो टर्म्स है थोड़ी सी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा या पोर्टल रहेगा जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है जिसके ऑफ आरबीआई,
कि अगर वहां पे आपका ग्रीवेंस जो रेगुलेटेड एंटिटी है उसके लेवल पे नहीं रिड्रेस हुआ, तो आप ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है आरबीआई का, उसके पास जा सकते हो और यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन को रिड्रेस करवा सकते हो अगर बैंक जो है 30 दिन के अंदर आपकी ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं करता है तो। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज ये है कि इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी जो आरबीआई का ओम्बड्समैन है उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ डेटा को लेके कुछ चीजें बोली गई है, जैसे कोई भी बायोमेट्रिक डेटा जो है वो स्टोर नहीं करेंगे। ये जितनी भी डिजिटल लेंडिंग एप्स है ये कोई भी बायोमेट्रिक डेटा नहीं स्टोर करेंगे और इनके जो सर्वर्स हैं ये केवल इंडिया में लोकेटेड होंगे। नेक्स्ट, कोई खास पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है एक्सेप्ट बेसिक मिनिमल डिटेल लाइक नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं इकट्ठा करनी है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कुछ और चीजें भी बोली गई है, जैसे ये जो डिजिटल लेंडिंग एप्स है दे हैव टू बी रिपोर्टेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर और टेनर। ओके, जो जितना भी लोन डिसबर्स किया गया है रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा थ्रू दीज डिजिटल लैंडिंग एप्स और प्लेटफॉर्म, तो सब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है उनको रिपोर्ट करनी है। प्लस ये जो बाय नाउ पे लेटर मॉडल है दिस नीड्स टू बी ऑल्सो रिपोर्टेड। फिर ये कूलिंग ऑफ जो लुकअप पीरियड था कि कब आप जो है लोन को पहले पे करके एग्जिट ले सकते हो उसमें से, तो ये सब कूलिंग ऑफ ये लुकअप पीरियड होता है। ओके, एंड देन ड्यू डिलिजेंस है कि कई बार कंपनीज क्या करती हैं थर्ड पार्टीज को हायर कर लेती है लोन रिकवरी के लिए। जैसे अभी रिसेंटली महिंद्रा फाइनेंस का एक केस था कि वो क्या करती थी, थर्ड पार्टीज को रिकवरी के लिए भेज देती थी। अब रिकवरी एजेंसीज में वो बाउंसर लेके आ जाते थे और कई बार जो डिफॉल्टर बोरोवर्स है उनको पकड़ के पीट देते थे या और कुछ ऐसा अनएथिकल काम कर देते थे, जिसके कारण देखने को मिल रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें नहीं करनी है। ये इंश्योर करना है जो लोन सर्विस प्रोवाइडर है ये एथिकली काम कर रहे हैं और विद इन द लॉ काम कर रहे हैं। ओके, सो ये कुछ चीजें थी विच वॉज एसोसिएटेड विद डिजिटल लेंडिंग। अब इश्यूज की बात कर लेते हैं इस गाइडलाइंस के साथ। अभी इश्यू क्या है, तो गाइडलाइंस पहला तो एक तो टाइमलाइन बहुत लंबा दिया गया है, द रीजन बीइंग कि बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। ये जो गाइडलाइंस है बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है अभी भी। तो पहला चीज इससे क्या होगा कि बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे जो कंप्लायंस कॉस्ट है और जो ऑपरेशनल इंटेंसिटी है वो सब इंक्रीज होंगी। तो फिनटेक्स के लिए जो बिजनेस करना है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा या कॉस्टली हो जाएगा, तो उनके जो मार्जिन है वो रिड्यूस होंगे। एक टर्म है लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। तो एक्चुअली ये आई थिंक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म है। थोड़ा सा अगर ब्रीफली बताऊं तो इसका मतलब यही है कि जो रेगुलेटेड एंटिटी होती है और जो फिनटेक कंपनीज होती हैं इनके बीच में एक टाइप रहता है जिसके थ्रू अगर लेट्स से कि कोई लोन जो है वो डिफॉल्ट हो गया तो उसका रीपेमेंट या उसकी कोई गारंटी कौन लेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज उसकी गारंटी लेते हैं और ऐसे में रिपे करने की कोशिश करते हैं सम अमाउंट ऑफ दैट डिफॉल्ट लोन। ओके, बाकी इतना निटिग्रेटेड डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक्स एंड फिनटेक्स। तो एनबीएफसी और फिनटेक जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, तो ऐसे में इनको आपस में अलाइन करना या को लेंडिंग फैसिलिटी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिफरेंट है तो इंटीग्रेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये कुछ इश्यूज है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो पहला, फिनटेक्स और एनबीएफसी को रोबस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली डाटा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ताकि जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है या जो पर्सनल डेटा है वो लीक ना हो या थ्रेटन ना हो किसी भी पोजीशन पे। नेक्स्ट, अभी जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, ऑल्दो बहुत लंबे समय से ये आने वाला है, लेकिन जब भी आएगा तब इससे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं या जो डेटा रेगुलेशन है वो और ज्यादा टाइटन हो जाएंगे। तो ऐसे में कंपनीज के ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन है वो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो कंपनीज हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड हो गया, ऑल्दो और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें अपने एंड से ऐड ऑन कर सकते हो। आगे जाने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। सो बॉक्स में आप देख सकते हो रिलेटेड न्यूज है, आरबीआई हैज रिवाइज्ड द गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटाइजेशन। अब आरबीआई ने स्पेसिफिकली ये जो सिक्योरिटाइजेशन की जो गाइडलाइंस है वो
ऐसे लोन्स के लिए करिए जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 365 है। ओके, सो अब जो लेंडर्स हैं जो ऐसे कुछ लोन्स बेच रहे हैं जो 365 डेज से कम में मेच्योर हो जाएंगे, तो आरबीआई ने बैन कर दिया है कि उनको सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते। अब सिक्योरिटाइज का मतलब क्या होता है? सो सिक्योरिटाइज में बेसिकली आप बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स को पूल कर देते हो जिससे उसे बेचना आसान हो जाता है टू सम इन्वेस्टर। जैसे एक बहुत ही बढ़िया इसका एग्जाम्पल है जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का था। ठीक है, यूएस में चालू हुआ और फॉर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से रिसेशन ला दिया था। ठीक है, इंडिया में इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं था बिकॉज इंडिया शायद तब उतना इंटीग्रेटेड नहीं था वर्ल्ड इकोनॉमी से, बट ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत लार्ज इम्पैक्ट इसने क्रिएट किया था। तो ये शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ में अगर आप जाओगे तो आप सुनोगे सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस के बारे में या हाउसिंग क्राइसिस के बारे में, जहां पे क्या हो रहा था कि बैंक्स जो है लोन मुफ्त के भाव बांट रहे थे, कि वो चेक भी नहीं कर रहे थे कि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, बस वो टारगेट्स पूरा करने के लिए इजीली लोन को बांट रहे थे, सबको घर प्रोवाइड करा रहे थे। जैसे घरों का बिक्री बढ़ाने लगे वो लोग, उनको रियलाइज होने लगा कि हमें फंडिंग की जरूरत है। और क्योंकि ये मॉडल अनसस्टेनेबल था, क्योंकि आप ऐसे लोगों को भी घर प्रोवाइड करा रहे थे जिनकी रिपेमेंट की क्षमता ही नहीं है, तो उस पैसे को लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बैंक को लोन अगर प्रोवाइड कराना तो बैंक के खुद के पास भी पैसा होना चाहिए, तो बैंक क्या कर रहे थे, बहुत सारे हाउसिंग बॉन्ड्स रिलीज कर रहे थे, उस हाउसिंग बॉन्ड्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे थे। और वो हाउसिंग बॉन्ड्स की रेटिंग बहुत घटिया थी, क्योंकि सबको पता था कि ये जो है लोग जिनको लोन दे रहे हैं ये लोग रीपे नहीं कर पाएंगे, तो उनकी रेटिंग बहुत घटिया होती थी, जैसे BBB- या ऐसे करके गलत खराब खराब रेटिंग होती थी, जिनको हम जंक बॉन्ड कहते हैं। तो वो क्या करते थे, इन जंक बॉन्ड्स को नॉर्मली तो कोई इन्वेस्टर खरीदेगा नहीं, तो उनको क्या करते थे, बहुत सारे जंक बॉन्ड्स को कुछ एक एक दो अच्छे बॉन्ड्स के साथ मिलाकर बेच देते थे। जैसे गवर्नमेंट भी कर रही है, भारत ETF आपने सुना होगा, कि कुछ ऐसे PSUs हैं जिनको शायद कोई इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा, तो क्या करते हैं, उनके जो शेयर है, अच्छे जो PSUs है उनके साथ एक बास्केट में डाल के आपको बेच देते हैं, ताकि इन्वेस्टर जो है फिर उसको लगे कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छा भी चीज मिल रहा है। जैसे क्या कर, एक लेमैन एग्जांपल दूं तो क्या कर रहे हैं, एक बास्केट के अंदर 4-5 अच्छे सेब रख रहे हैं और उसके साथ 2-3 सड़े हुए सेब लगा के आपको बेच रहे हैं। तो ये सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है, और आरबीआई ने ये बोला है कि ये जो सिक्योरिटाइजेशन आप कर रहे हो 365 डेज से कम वाले लोन्स का, वो बंद कर दो। ओके, तो इसमें MFIs, गोल्ड लोन्स और शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन जो भी है, ये सब नहीं हो पाएगा सिक्योरिटाइजेशन। ओके, सो विद दैट वी आर डन विद डिजिटल लेंडिंग। थोड़ा सा आई थिंक लंबा हो गया, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आई थिंक थोड़ा करना पड़ा। So this is only information topic, okay? मतलब there is nothing to add or anything. So just yeah. Um, so the article is recategorization of urban cooperative banks, that is UCBs. तो रिसेंटली आरबीआई ने जो कमिटी स्थापन की थी 2021 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री NS विश्वनाथन, हु वाज द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो इसकी जो इनकी कमिटीज थी, दैट इज एक्सपर्ट कमिटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हुआ है यूसीबीस का। 4 टियर कैटेगराइजेशन बोल सकते हैं। सो जो कैटेगराइजेशन हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। तो जो 100 करोड़ से कम है डिपॉजिट्स, उसको हम टियर 1 बोलेंगे। 100 से 1000 करोड़ के बीच में जो है दैट इज टियर 2। 1000 to 10,000 is tier 3, and 10,000 more than 10,000 is tier 4 UCB। तो यहाँ के फ्रेमवर्क में और भी देर आर अदर थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन दिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो इनका जो नेटवर्थ है, फॉर टियर 1 UCBs it has to be, if something that UCB is operating in a single district, the minimum net worth it should have is 2 crore, and for all other UCBs, the other tiers 2, 3, 4, they should have minimum net worth of 5 crore. Okay, now when it comes to capital to risk weighted asset ratio, for tier 1 UCB it has to maintain minimum ratio of 9%, and for tier 2, 3, 4 it has to maintain a minimum ratio of 12%. Now this is another term, that this status
that is called as FSWM status, that is financially sound and well managed. So this is a status, okay? So it is given for these UCBs. So ये status के लिए criteria ये रखा है कि जो net NPA है, it should not be more than 3%. Okay, the default, there has to be no default in the maintenance of CRR and SLR, and it has to implement the core banking solutions. ये जो framework है, that is applicable to all primary, that is urban cooperative banks. तो statement में आ सकता है all बोल के, and we feel like ये extreme statement है, but नहीं, it is applicable to all urban cooperative banks. So now let's differentiate between UCBs, then universal banks, small financial banks, and RRPs. So in terms of capital adequacy, for UCBs, it follows the Basel I norms, and it has to maintain the capital only on the credit risk. For universal banks, it has to follow Basel III norms. For SFBs, it has to follow Basel II norms. Okay, RRBs, they are since they are regional, it has to follow Basel I norms. So now, when it comes to another parameter, that is opening of branches and extension of counter, जिस बैंक को, जिस UCB को FSWM status है, it will follow the automatic route, and for all other banks, it will follow automatic approval route, but it is subjected to conditions. When it comes to extension of area of operation, for UCBs, it has to follow, it has to get prior approval, and for like we know SFBs and universal banks, this extension is not applicable to them because they operate on the entire country. Okay, for RRBs, this area of operation is already fixed. That's why they are called as regional. Okay, now when it comes to PSL, that is priority sector lending targets, apart from universal banks, everyone has to allot 75% of their adjusted net bank credit. And for universal bank, like we know, it is just 40%. Now, to include the banks in RBI's second schedule, UCBs have to fulfill the prescribed criteria, okay, and all of them have to get an approval. But when it comes to RRB, this newly amalgamated RRBs are scheduled by RBI on the basis of the certification by NABARD. So only for NABARD, only for RRBs, they have to get a certification by NABARD. So this is the comparison between these major UCBs, then universal banks, small finance banks, and RRBs. So let's see what is cooperative banks. So ये पहले ही देना चाहिए था उन्होंने, but हाँ, cooperative banks are these financial entities established on cooperative basis, and they belong to all their members. This means that customers of the cooperative banks are also its owners. Okay, the registration, for registering something as a UCB, it has to be registered as a cooperative societies under the State Cooperative Societies Act, and of a state concern. And if it is multi-state, then it has to be registered as Multi-State Cooperative Societies Act 2002. The regulation is split between RBI as well as center and state governments, and while that of small cooperative banks, it is divided between NABARD and the state governments. Okay, all the regulatory ambit that they come under RBI, and this is through Banking Regulation Act of 1949 as well as Banking Laws Cooperative Societies Act 1955. So जो regulation है, that will be done by RBI under these two acts. And when it comes to urban and multi-state cooperative banks, the direct supervision is by RBI. So there is no center and state governments there. So let's see what are the recent steps before going into SWOT analysis. So Banking Regulation Act, जो Amendment Act था 2020 का, so it brought management, governance, audit, reconstructions, winding up, etc. of cooperative banks under the RBI's purview. So whereas before RBI was only concerned with the banking related functions of the UCBs. तो जो भी incorporation management था, audit था, winding up था, ये सारी cooperative societies कर लेती थी खुद से. But now because of this amendment, everything is under RBI's control. Then we also came जो पंजाब and महाराष्ट्र cooperative bank में over 9 lakh depositors में distress हुआ था. That's why we also have they also come up with the supervisory action framework.
Okay, it seeks to ensure the expeditious resolution of financial stress faced by some of the UCBs. So हमें पता है कि RBI ने ये prompt corrective action लाया था. So SAF is similar to this PCA framework, which is the PCA framework is imposed on the commercial banks. This is imposed on UCBs. Okay. RBI also said that there has to be umbrella organization. So this umbrella organization can act as a self-regulatory body for small UCBs, and it will have a paid-up capital of 300 crores. So it will provide cross liquidity and capital support for these UCBs whenever needed. Other important steps, they include जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में एक MOU साइन होना चाहिए, so that there will be facilitation, coordination of regulatory policies. There will be a task force for UCBs, a comprehensive set of capacity building initiatives, measures to bring in efficiency through adoption of technology. So all these important steps to be which are to be taken. They are also prescribing educational qualification and fit for proper criteria for the managing directors and the whole time directors, because generally हमने देखा है कि ये politicians भी इसमें कुछ role play करते हैं, and those directors are not full time. This is not their full time job. So they are prescribing this whole time directors wala post for primary urban banks, and we also have to bar the MPs and MLAs from these posts. Then we have voluntary transition into SFBs. So जो eligible UCBs है, so in 2015 there was this high powered committee which it recommended this scheme which will enable this eligible UCBs to voluntarily transition into SFBs. Okay, there will be interest subvention. There is an interest subvention scheme for MSMEs. So for inclusion of UCBs as eligible lending institution under the interest subvention scheme for MSMEs 2018 for on par with commercial banks. We have to constitute board of management for these banks. So RBI provided the guidelines for the constitution of board of management in UCBs with deposits more than 100 crores. So we know that it is for tier 2, 3, 4. Okay, and finally customer protection. So इसके बाद SWOT analysis करते हैं. So इनकी strengths क्या है? तो it has business oriented towards the serving the small customers, and the operations are tailored to local conditions. So एक इसकी strength है. Similarly, there are other things like it has ability to quickly design products suitable to local conditions, proximity to the borrower and better understanding of the local requirements. Finally, it has the higher customer loyalty due to mutuality of objective. मतलब जो लोग होते हैं वो primary preference इसको देते हैं compared to other banks. Okay, it has several weaknesses also. So it has inadequate avenues for raising capital. It lacks the professional management. It has a weak internal control and audit system, and a small area of operations. But at the same time, because of these changes that were mentioned before, the recent steps taken, it has also several opportunities. So like we know, umbrella organization. So it will boost the performance of UCBs after the establishment of our umbrella organization. Then it has a large untapped market, particularly in respect to small borrowers to whom UCBs are generally catering to. Huge business potential because there are several financial inclusion initiatives which are being taken, and it offers the third-party products, digital payments, etc. So these are the opportunities when it comes to UCBs. Threats क्या हो सकते हैं? It can have acute competition emanating from the differentiated banks, MFIs and fintechs in the niche market segment of UCBs. It can also have get a dent on the image of UCBs because of frequent failures of UCBs, including the large UCBs. People can shift their preference towards the digital channel of banking, and the geographical concentration risk to smaller UCBs due to the small area of operation is always there. So these are the threats when it comes to UCBs. So by this, we are done with the analysis of UCBs as a whole. I guess next article पे चलते हैं. So next is Multi-Stage Cooperative Societies Amendment Bill 2022. So
as you know, recently this bill was introduced in Lok Sabha. And before that, you know, the 97 Constitutional Amendment Act, which was partially struck down by Supreme Court. किसी को इस केस के बारे में पता है, like why was it struck down? Anybody would like to point out कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से 97 Constitutional Amendment Act के कुछ provisions were struck down? Anybody? Is it about multi-state? Like Gujarat High Court was saying that center cannot make laws on this because it is in state subject. Is it like that? या करेक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था और यही बोल के किया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सेंटर के अंदर आ सकती है, लेकिन जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो स्टेट की जुरिडिक्शन में आएंगी. सो वहां पे अगर सेंटर अगर कोई लॉ बना रहा है तो दिस इज अल्ट्रा वायरस, एंड दैट्स वाई जो स्टेट के रिलेवेंट जो प्रोविजन है दे वर स्ट्रक डाउन. ओके, सो एक क्वेश्चन फॉलो अप पूछता हूँ. नीति मैम, आप बता दीजिए कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये कौन सी लिस्ट में आता है? लिस्ट है हमारी 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट. कौन सी लिस्ट में आता है? या कोई और आंसर करना? कॉन्करेंट लिस्ट में. ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? स्टेट लिस्ट में है सर. करेक्ट. तो दिस इज अंडर स्टेट लिस्ट. मतलब थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है कि सेंटर का भी जुरिडिक्शन है, तो ऐसा लगता है कंकरेंट में होगा, लेकिन कंकरेंट में नहीं है. ये कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है. ओके, सो कोऑपरेटिव एज यू नो इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन नीड्स, जो एक साथ आते हैं और कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जुड़ते हैं और वर्क करते हैं. सो कोऑपरेटिव, जैसे हमने बात किया, एक स्टेट सब्जेक्ट है और पहली बार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो था 2002 में बनाया गया था, और उसी के थ्रू इंटर स्टेट जो कोऑपरेटिव्स हैं वो गवर्न होती है, और उसके लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्रार रहता है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स है उनके लिए, और जो स्टेट लेवल पे है वहां पे स्टेट का जो भी रजिस्ट्रार है वो उसको रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इफ यू टॉक, तो महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 567, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड देन न्यू दिल्ली. ओके, सो इसमें महाराष्ट्र तो लीप्स एंड बाउंड बहुत आगे है, इसीलिए हम जब भी शुगर मिल और इन सब की बात करते हैं तो हम ये जरूर पॉइंट बोलते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट काफी स्ट्रांग है. लेकिन आगे हम देखेंगे बहुत सारे इश्यूज हैं करंटली जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसके अंदर. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत तरह की होती है, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जैसे अभी हमने सर ने पढ़ाया कि पीएमसी बैंक जो था उसकी बात कर रहे थे, तो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक ही था वो, जो अपने मेंबर से डिपॉजिट लेता है और उनको रीजनेबल रेट पे लोन देता है. इसके अलावा फार्मिंग के लिए हो सकता है, फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं जहाँ पे कंज्यूमर एक साथ आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जो जनरल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है वो रीजनेबल प्राइस पे मिले. इसके अलावा बहुत भी और तरह के होते हैं, बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सो ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल है 2022 का, इसको और जानने से पहले हम लोग थोड़ा इश्यू देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो कि क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, सो पहले देखिए इश्यूज में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स. सो ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये पार्ट आर्टिकल 43B के अंदर ऐड किया था कि डेमोक्रेटिकली हमें कोशिश करनी है कि कोऑपरेटिव्स बनाए, लोग एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, वो फंडामेंटल राइट भी है. लेकिन ये तो थ्योरेटिकली हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम कोऑपरेटिव्स की फंक्शनिंग देखते हैं तो दीज आर जनरली डोमिनेटेड बाय लोकल पावरफुल पीपल. जनरली पॉलिटिकल जिनकी बैकिंग होती है वो लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर जो पोस्ट होते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं और परमानेंटली बैठे रहते हैं और उन कोऑपरेटिव्स को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए फिर चलाते हैं. ठीक है, जैसे कोई फैमिली रन बिजनेस हो वैसे. तो एक तो ये बहुत बड़ा इश्यू है कि पॉलिटिकल इसमें हेजेमनी रहती है या पॉलिटिसाइजेशन होता है कोऑपरेटिव्स का. फिर है स्क्यूड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस. तो जैसे हमने बात किया महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में इनका डोमिनेंस जो है कोऑपरेटिव्स का या मूवमेंट जो है काफी स्ट्रांग है. लेकिन अगर उससे हम कंपेयर करें विद बिहार, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव्स का मूवमेंट काफी कम है. ठीक है, नंबर एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में उतना वेल डेवलप्ड नहीं है.
सो कोशिश करना है कि अक्रॉस इंडिया कोऑपरेटिव्स का सिमिलर डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट फंक्शनल वीकनेस है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल देखते हैं। जनरली हमारे इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव्स हैं वहां पे हम देखते हैं कि उनके अंदर शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कफोर्स की, प्रोफेशनलिज्म की कमी है मेंबर्स के अंदर, थोड़ा सा फैमिली रन बिजनेस की तरह ज्यादा चलने लगते हैं कुछ समय के बाद, जो कि इनहेरेंटली उन्हें वीक बनाते हैं फंक्शनिंग में। फिर ऑपरेशनल चैलेंजेस की बात करें तो इसमें लैक ऑफ फेयर ऑडिट मैकेनिज्म, कि प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है अमंग द कोऑपरेटिव्स एट डिफरेंट लेवल, तो ये कुछ इश्यूज हैं। और एक लास्ट इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, डोमिनेंस ऑफ सिंगल पर्पस सोसाइटी, कि सपोज दूध से रिलेटेड कोई कोऑपरेटिव बनाया तो उससे वो दूध के लिए ही काम कर रहा है, उससे अलावा और कुछ नहीं देख रहा, क्योंकि कोऑपरेटिव में हम बहुत सारी और इश्यूज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा। वी आर नॉट सीइंग मल्टीपर्पज सोसाइटी, वी आर सीइंग सिंगल पर्पज सोसाइटी डोमिनेटिंग द एंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये भी एक इश्यू है। अब आते हैं इस बिल के ऊपर। सो बिल के अंदर ये चीज बोला गया था कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर। ठीक है, तो क्लियरली ये चीज बोला गया है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऊपरी तौर पे हमें करनी है। अब वो होगा कैसे? तो पहला इसके अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट होगा कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का, जैसे हमारे चीफ या ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराती है पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो वैसे ही कोऑपरेटिव्स के अंदर भी इलेक्शन होते रहे रेगुलरली, ताकि कोई एक सिंगल पर्सन उसके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो उसके अंदर डोमिनेट ना करे। ठीक है, रेगुलरली इलेक्शन होते रहे और डेमोक्रेटिकली ये फंक्शन करते रहे। तो इसके लिए एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। अब इसको बनाएगा कौन? दिस विल बी फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? एक होगा चेयरपर्सन, एक होगा वाइस चेयरपर्सन एंड अप टू 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी पूरी की पूरी बॉडी जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसका काम क्या होगा? पहला कंडक्ट कराना इलेक्शन, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट कंट्रोल एंड द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। तो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें जो इलेक्शन होगा उसमें इलेक्टोरल रूल्स, जो पार्टिसिपेंट है वो वोट करें उसके अंदर, तो उनके इलेक्टोरल रोल तैयार करना एंड परफॉर्म अदर प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन, जो कि गवर्नमेंट कभी भी बाद में बताएगी वो सब। नेक्स्ट कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन रहेगा, जो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी अपॉइंट करेगा, जिसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन रहेगा कि अगर लेट्स से कोई कंप्लेन आती है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर अमेलगेमेशन एंड डिवीजन, यानी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम मर्ज करना चाह रहे हैं जो कि एक सिंगल स्टेट में है विद अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, तो वो भी कर पाएंगे। और कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में से कोई यूनिट बाहर निकलना चाह रहा है तो उसके लिए भी डिवीजन का प्रावधान होगा। लेकिन ये कब हो सकता है अमेलगमेशन? जब एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेजेंट इन वोटिंग मस्ट पास अ रेजोल्यूशन टू अलाउ सच मर्जर या सच डिवीजन। तब जाके हम कह सकते हैं कि उसको अमेलगमेट या डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, जहां पे जो सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे पीएमसी बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो एक मल्टी स्टेट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी या एक बैंक था एंड उसकी हालत खराब हो गई थी। सो वहां पे इस फंड के थ्रू हम लोग ऐसी सोसाइटीज को वापस रिवाइव कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपोजिशन है वो भी इस बिल के थ्रू बनाने की कोशिश की गई है, इन द सेंस कि दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट इंक्लूड 1 scheduled कास्ट और 1 scheduled ट्राइब मेंबर एंड 2 वुमेन मेंबर्स। तो एक तरीके से जो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है वो भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव। नेक्स्ट, इंक्रीज पेनल्टी। तो अब पेनल्टी कितने रुपयों की है उतना काम का नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि पेनल्टी का प्रोविजन है। अगर आप बिल के किसी भी पार्ट से कंप्लाई नहीं करते हो देन पेनल्टी कैन बी इम्पोज ऑन यू। नेक्स्ट है कॉन्करेंट ऑडिट। सो इसमें एक सेक्शन इंसर्ट किया है 70A फॉर
such multi-state societies with an annual turnover or deposit of more than the amount determined by the center. Okay, so अभी ये अमाउंट क्या होगा ये सेंटर ने नहीं बताया, बट जब भी सेंटर बताएगा तब से हम मानेंगे ऐसे मल्टी स्टेट सोसाइटी तो उनका हम कॉन्करेंट ऑडिट कर सकते हैं. ओके, सो अभी ये चीज पे थोड़ी सी क्लैरिटी जब बन जाएगा और फाइनल डिटेल्स जब एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाएंगे तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी. अभी के लिए याद रखो बस एक कंकरेंट ऑडिट करके भी प्रोविजन है इसमें. नेक्स्ट, अगर हम बात करें इस बेनिफिट क्या होगा इस अमेंडमेंट से, तो पहला इक्विटी प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा इंक्लूसिवनेस, बिकॉज हमने देखा वुमेन और शेड्यूल कास्ट जो मेंबर्स है वो भी बोर्ड के अंदर शामिल किए गए हैं मैंडेटरीली. प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हमने देखा था जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस बिल का वो यही था. फिर डेमोक्रेटाइज करेगा कोऑपरेटिव्स को, क्योंकि रेगुलर इलेक्शन होगा तो कोई भी जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो ज्यादा देर तक अपनी डोमिनेंस पे क्रिएट नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, रिवाइवल ऑफ सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा. फिर प्रमोट करेगा डिसिप्लिन जो है उसको प्रमोट करेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने पेनल्टीज के प्रोविजन दिए हैं और पेनल्टी के जो प्रोविजन है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हुए, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई नहीं कंप्लाई करता तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगेगी. तो इस तरीके से डिसिप्लिन इंश्योर होगा. लेकिन कुछ इश्यूज है बिल के साथ. तो पहला, बिल सीक्स टू टेक अवे द स्टेट गवर्नमेंट राइट्स इन अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर. तो अगेन आर्टिकल 131 के अंदर स्टेट जो है चैलेंज कर सकते हैं इस बिल को भी. सो चैलेंज तभी कर देंगे जब ये एक्ट बन जाएगा, तभी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं. नेक्स्ट, सेंटर इज इनडायरेक्टली इंक्रोचिंग इनटू द राइट्स ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, सो ये भी एक इशू है कि फेडरलिज्म का इशू क्रिएट हो रहा है और स्टेट के जो जुरिडिक्शन है उसमें कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट हो रहा है सेंटर के द्वारा. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स विच आर इन प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 3 years. मतलब अगेन थोड़ा सा निटी ग्रिटी डिटेल है कि यहाँ पे कुछ एनुअल क्रेडिट जो है वो 1% अपना पिछले 3 साल का वो देना पड़ेगा टू द कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, जिसके थ्रू जो सिक कोऑपरेटिव्स है उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा. नेक्स्ट, बिल प्रोहिबिट्स रिडम्पशन ऑफ शेयर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विदाउट सेंटर्स अप्रूवल. This strike at the heart of the principle of autonomous functioning of cooperative society. तो जो जैसे कि आप जानते हो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स ऐड किए थे तो वहां पे यही चीज बोला गया था कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है दे शुड ऑटोनॉमसली फंक्शन. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो ऑटोनॉमस फंक्शन है इसको सस्पेंड कर दिया वर्चुअली. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस बिल. अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की. सो पहला, प्रमोट करें मल्टीपर्पज सोसाइटी. जो हमने देखा था कि इंडिया के अंदर सिंगल पर्पज सोसाइटी जो है वो डोमिनेट कर रही है, जबकि लोगों की जरूरत जो है मल्टी फेसेटेड होती है, ठीक है, या मल्टी डायमेंशनल होती है. तो वहां पे मल्टी पर्पज सोसाइटी बनाएंगे तो शायद ज्यादा बेटर लोगों के इंटरेस्ट को केटर कर पाएंगे. फिर है इंश्योर करना एफिशिएंसी इन फंक्शनिंग, कि हम इंश्योर करें जो वर्कफोर्स है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती रहे, रेगुलर ऑडिट होते रहे, ताकि जो कोऑपरेटिव्स हैं ये ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव वे में वर्क करते रहे. नेक्स्ट, अवेयरनेस करें. तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजीज बनाई जाए जिसके थ्रू जो कोऑपरेटिव है ये एक मास मूवमेंट बन जाए. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि ऑन द लाइंस ऑफ द नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन, तो उनका पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव बैंक के बारे में रिकमेंडेशन था, वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हो नरसिम्हन कमेटी को. फिर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स. तो जैसा कि आप जानते हो जब भी हम आईटी को लेवरेज करेंगे तब हम पाएंगे कि ज्यादा बेटर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो पा रही है, साथ ही साथ जो इफेक्टिवनेस है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में वो भी आ पा रही है. सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू द कोऑपरेटिव्स जो बिल आया है उसका. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? So the article is land titling. Okay. So recently नीति आयोग ने एक एक्ट पब्लिश किया था, that is मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट. सो इसका एक बेसिक हिस्टोरिकल प्रीमाइस देख लेते हैं
कि लैंड रिफॉर्म्स हमें पता है कि 1950 से चालू है, बट जो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है ये रिसेंट 21st सेंचुरी में 2008 में इसका चालू हुआ था. दिस इज बाय डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. So it highlighted the shift from or replacing the presumptive title system in India. But again, it was not that much successful. So in 2011, again, government drafted this model land titling bill of 2011, which again aimed at states to move towards the establishing conclusive titles. But this bill was not providing how we are going to transition from current system, that is presumptive title system, to the new system. So that's why it again got lagged. And in 2021, this model bill on conclusion land titling was sent to states and union territories. But उसमें भी states ने कुछ अच्छा feedback नहीं दिया and कुछ states ने तो feedback भी नहीं दिया. Okay, so that's why Niti Aayog now published this model conclusive land titling act. So let's see ये land titling क्या होता है. So to exchange or trade any land or property rights, we need to have the ownership document of that land. So this will be implemented by states, which will enable the individuals to exchange and trade the land or the property rights. Okay, and this is very important when it comes to vulnerable groups or poor groups, marginal farmers, tribes, and other backward categories people, because उनका जो core livelihood है that is dependent on the access of land and basically वो land का जो ownership है उस पे. Because when it comes to vulnerable groups, जो let's say big farmers है, they can easily if they do not have the document ownership, they can easily put a pressure on them to give up like take the land from them, or put a burden on them. So that's why this documented ownership is very important. So currently India में क्या होता है, we have a system of presumptive land titling. So what does it mean? Presumptive land titling means जो land की जो ownership है, that is determined on the detail of the past transactions. So this land records, इनका जो registration है, okay, so this actually is a registration of the transaction. Okay, तो transaction में क्या क्या आता है, we have record of inheritance, कोई mortgage पे लिया है या फिर lease पे दिया है या फिर actually selling of that particular land. Okay, so basically we are registering the transactions and not the ownership, किसके ownership पे. Okay, so that is what the current system is. And currently जिस हमने देखा होगा कोई मूवीज में या फिर इफ नॉट मूवीज किसी ने पर्सनल लाइफ में जो साहूकार सिस्टम होता है, ओके, तो वहां पे हमें अपने पेपर रखने पड़ते हैं, बिकॉज दैट पेपर हैज द ओनरशिप. ओके, दैट एक्ट्स एज अ ट्रांजैक्शन. ओके, so what we are trying to do is we want to have a ownership to that person. Okay, that person should be having the actual ownership, and it should not be based on just the registration papers. Okay, so for that, under this new conclusive land titling system, states will provide the guarantees on the land titles, okay, which will include the provisions for compensation in case of any dispute. So कभी कभी हमने ये पता है कि there are multiple entities which will have claims on the same land. Okay, so this is the state's duty now to resolve those disputes. Okay, and in extreme cases, it will go to the high courts. Okay, now when it comes to titles granted, तो एक बार अगर टाइटल मिल गया, मतलब जो भी लैंड ओनर है उसको, सो जो दूसरे वाले जो क्लेमेंट बोलते हैं उसको, जो अदर पीपल हु क्लेम ऑन दैट लैंड, तो दोज क्लेमेंट्स विल बी डीलिंग विद द स्टेट्स, नॉट द टाइटल होल्डर. सो हमेशा हमने देखा है कि बहुत लोगों में झगड़ा वगैरह ये मतलब सालों से चलता रहता है, अराउंड 20 years. ओके, टू डिस्प्यूट एनी, जनरली ऐसा नीति आयोग का ही रिपोर्ट है कि 20 years लगते हैं फॉर मैटर टू गेट रिजॉल्व. तो दैट लैंड होल्डर जिसकी विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे उसने प्रोसीजर किए है, तो उस बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बिकॉज देयर आर अदर क्लेम्स. ओके, एंड दे आल्सो लुक वेरी मच प्रॉमिसेबल. तो इसमें क्या है कि कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम में अदर क्लेमेंट्स विल डील विद स्टेट गवर्नमेंट ओनली, नॉट विद द टाइटल होल्डर. ओके, now the government may also provide compensation to the claimants in case of disputes. तो अगर there are some genuine claimants कि जिनके पास भी like some promisable documents are there, okay, so they will get compensation from the states, because जो भी उनका जो नुकसान हुआ है, that is because of the system. Okay, so that's what.
And this system has originated in South Australia, and it's spread across the Commonwealth nation. Now let's say key features of this model conclusive land titling act. It is in the box above. तो यहाँ पे हमें पता है कि state governments they'll set up land authorities. Okay, state governments के अंदर land authorities set होंगी, and this land authorities will appoint title registration officer. तो ये लैंड अथॉरिटीज का काम यही होगा कि दे हैव टू पब्लिश द रिकॉर्ड ऑफ टाइटल्स, दैट्स इट. नाउ लैंड अथॉरिटीज के अंदर एक टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, सो ही हैज टू प्रिपेयर एंड पब्लिश द ड्राफ्ट ऑफ द टाइटल्स. ओके, सो दिस आर द ओनली वन एंटिटी. लैंड अथॉरिटीज के नीचे टीआरओ होता है. नाउ व्हेन इट कम्स, लाइक आई सेड, देयर आर क्लेमेंट्स, मल्टीपल डिस्प्यूट्स आते हैं. सो जब भी डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट का क्लेम जाएगा लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर के पास. सो दिस LDRO इज सपोज टू रिजॉल्व द इश्यूज बाय वेरीफाइंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड अगर TRO या फिर LDRO के डॉक्यूमेंट्स को आपको चैलेंज करना है, देन देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ लैंड टाइटलिंग अपीलेट ट्राइब्यूनल. सो it has to give a result in three-year period, and after 3-year period you have a conclusive proof of the ownership of the land. Then किसी एक बंदे को ownership that title will be given. But and अगर फिर भी आपका मतलब satisfaction नहीं हुआ है, then after the last stage of verification, that is after 3 years, you can appeal to the high courts. So ये appeal can be only made to the high courts after the land titling appellate tribunals. So these are the basic features of this act. And उसका benefits देखते हैं क्या है ये. तो because of this act we have the lower litigation. जैसे नीति आयोग ने बोला है कि on an average 20 years are generally 20 years लगते हैं to settle any particular land dispute case. इसके कारण litigation एक timely manner में होगा because 3-year period tribunal के अंदर दिया गया. There it will also investor will also get interested in basically spending or doing some any sort of business on that particular land because the claims or the, I would say, dispute is getting resolved now. And property taxes in the cities of urban local bodies can be levied properly because there is a proper ownership data. In case of agricultural credit, it will give access to the agricultural credit easily because credit dependent is only on the ability of the use of land as a collateral. Since they have a land document, तो उनका जो access to agricultural credit है वो easy हो जाएगा. Now we generally know that कि ये बेनामी transaction होते हैं land के बारे में. That is, it will also reduce the black market in terms of land transaction. And since there is a proper data, government can levy taxes on it. And it will also remove the hurdles when it comes to infrastructure development. So हमने देखा है हमेशा कि infrastructure development start होता है and then there are disputes on the land. So because of which infrastructure project जो almost complete है वो बीच में रोकना पड़ता है या फिर demolish करना पड़ता है. So these are the benefits of this conclusive land titling. Now let's see what are the challenges. So हमें पता है कि जो भी हमारे पास records है, those are not very well documented. So that is one challenge. Secondly, since there are different states have different languages, तो ये maintain करना बहुत difficult है land titling. So there is no uniformity involved in it. And under this act, जो conclusive land titling act है, after the ownership is awarded, so state has to deal with the other claimants, right? So the state doesn't have any like insurance policy as such, and because of which उनको जो other claimants है उनको भी जो compensation देना पड़ता है. So there will be increased burden on the government. Okay. And in terms of registration system, there is no clarity on the registration system because like we have seen, the key features only talk about the authorities involved. It doesn't talk about, doesn't mention or define the new title registration system, how it is going to work. And in terms of TRO, so TRO is not someone who is state appointed, so it is a non-state official. And since it's a non-state official, it has a very low accountability, and it can jeopardize the working of that land authority or authority altogether.
सो नाउ कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि ये सिर्फ कभी पॉसिबल होगा जब वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड एक इट्स अ वेरी फ्लावरी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि फॉर दिस इज वेरी ट्रिवियल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टिल 2025 but it is imperative need to unleash the power of the land and to reap fruits by bringing about the much needed land reforms. So yeah, so this is the article on land titling. यहाँ पे किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है. So 3.9 this article is on price monitoring centers, that is PMC. So recently it was in the news because Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, तो उन्होंने for monitoring the prices of critical goods in India, they have proposed to establish this PMC. Okay, so PMC exactly क्या होता है कि it's like similar to we just जैसे हमारे पास price monitoring divisions थे, it's similar to that, but center यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि by 31st March 2023 it wants to have 750 PMCs across India. Okay, and it will provide financial support to the states for that. And यहाँ पे structure ऐसा होगा कि 50% will be funded by state and 50% by central government. Okay, so before going into the current setup, let's see कि ये PMC के फायदे क्या होंगे. So first of all, it will control the inflation when it comes to essential commodities. It will be monitored by PMCs and controlled by the center. Okay, the consumer interest will be protected because it will make sure there is a good quantities and quality standards, testing and benchmarks are met. So we know BIS, NTH, legal metrology, and National Consumer Helpline. Then there is e-Dakhil, so better use of the portal for online filing of consumer complaints, as PMCs will be able to take actions very fast compared to other methods, other platforms. So, and finally, since they are like 750 in number, that is a huge number, the market intervention will be easily possible. So it will there will be regular retail price reviews, and since there are retail price reviews on a regular basis, it will be able to decide on the strategies for market intervention. Okay, so now let's see current setup क्या है for price monitoring. We have price monitoring division. So this is under the Department of Consumer Affairs, and it is responsible for monitoring the prices of selected essential commodities. The activities of division include monitoring the retail, wholesale prices, spot prices, and future prices. And this monitoring is on daily basis. Okay. These prices are also put up on the website, so we can also check that. And state civil supplies departments for respective state governments, they also report the prices on the PMS app daily up for 22 essential food products. So these 22 essential food commodities, they are monitored based on the data collected from 340 market centers, and we are proposing 750. Okay, and जो भी उन्होंने डेटा जो prices put किए है उसका क्रॉस चेक करने के लिए we can use the services of FCI and NAFED. And so let's see what are the steps taken to ensure the price stability. We have the scheme for strengthening the prices monitoring mechanism. This is to ensure the streamlining of the process of price data reporting, monitoring and analysis of essential food commodities. Then we have market intervention scheme for pulses and some particular vegetables like onion. When it comes to price stabilization fund, that is PSF, so this is set up to tackle inflationary trends, particularly for three commodities, that is onion, potatoes, and pulses. This is agri-horticultural commodities. So only three things: price stabilization fund, scheme for strengthening price monitoring mechanism, then market intervention scheme. So this was a very small article. That's why I wanted to cover it. Yeah. Very cool. So Article 3.5 was competition law and big technology company. So अभी Parliamentary Standing Committee on Finance उसने एक report पेश किया with the title Anti-Competitive Practices by Big Tech Companies and urged for a Digital Competition Act and Code of Conduct for tech companies. Okay. So ये जो पूरा टॉपिक है और ये जो पूरा कंटेक्स्ट है ये हमारे लिए बहुत से सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है, फ्रॉम एथिक्स टू अप टू
द गवर्नेंस पार्ट. ओके, सो ये कंपटीशन की हम इतनी बात करें तो ये कंपटीशन होता क्या? सो कंपटीशन इज नथिंग बट इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन अ मार्केट जहां पे जो फर्म्स या सेलर्स हैं दे इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव फॉर द पेट्रोनेज ऑफ बायर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. यानी आप एज अ सेलर या एज अ बिजनेस आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका सामान खरीदें या आपका जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में हेल्प करे. अब ये ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट बढ़ाना हो सकता है, आपका सेल बढ़ाना हो सकता है या आपका मार्केट शेयर इंक्रीज करना हो सकता है. सो दिस इज व्हाट कंपटीशन इज, जहां पे इंडिपेंडेंटली सब लोग जो अपने इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उन्हें परस्यू कर सकते हैं. अब मार्केट स्ट्रक्चर को जब हम एनालाइज करते हैं या इकोनॉमिस्ट ने जो एनालाइज किया उन्होंने 4 टाइप के कंपटीशन बताए. ये 4 टाइप के कंपटीशन जैसे कि आप जानते हो, मोनोपोली जहां पे एक सिंगल सेलर जो है पूरा मार्केट को डोमिनेट करा हुआ है. जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो रेलवेज का आप एग्जांपल दे सकते हो कि वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट का डोमिनेशन है और कोई नया प्लेयर जो है वो रेलवेज में नहीं आ सकता है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट डजंट वांट इट. तो यहाँ पे फ्री मार्केट जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो सकता एंड कंज्यूमर्स हैव अ लिमिटेड चॉइस. फिर आता ओलिगोपोली. ओलिगोपोली मींस कि एक ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो कि मार्केट कंट्रोल कर रही है. तो कई बार ऐसे देखा गया है कि कई कंपनीज जो है वो ओलिगोपोली में शामिल हो जाती हैं और कार्टेल चलाने की कोशिश करती हैं जिससे वो प्राइस को अपने हिसाब से कंट्रोल करती हैं. तो अगर ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ वीजा और मास्टर कार्ड. सो ये यूएस बेस्ड पेमेंट कंपनीज थी जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी पेमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो ये वीजा और मास्टर कार्ड चला रहे थे. एंड अभी जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ तब हमने देखा कि वीजा और मास्टर कार्ड ने जो रशिया बेस्ड बैंक्स हैं उनको अपनी सर्विस से बाहर कर दिया. तो गवर्नमेंट ने इसको कहीं ना कहीं पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि इनका डोमिनेंस जो है वो सॉवरेनिटी के खिलाफ हो सकता है और उसी के चलते इंडिया ने अपना एक रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया. दैट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. अभी हम ओलिगोपोली के ऊपर डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैंने ये बोल दिया. नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. अब मोनोपोलिस्टिक थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे. मोनोपोलिस्टिक का मतलब है ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे कंपनीज तो है थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है दे आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट. जैसे अगर मैं बोलूं एक गाड़ी की कंपनी है और एक ट्रैक्टर बनाने की कंपनी है, तो दोनों मोबिलिटी तो ऑफर कर रहे हैं लेकिन उनके जो यूटिलिटी है वो एकदम परफेक्टली सेम नहीं है. ठीक है, सो ये मोनोपोलिस्टिक होता है जहां पे कंपनीज है लेकिन वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. और फिर आता है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन. यहाँ पे हम देखते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मल्टीपल नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो है वो आपस में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं. जैसे एक कंपनी है या मल्टीपल कंपनी शैम्पू बनाती है, मल्टीपल लोग शैम्पूज खरीदते भी हैं, किसी को कोई शैम्पू पसंद होता है, किसी को कोई शैम्पू पसंद होता है. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन अराइज हो गई है और यहाँ पे कंज्यूमर और फर्म्स को एकदम परफेक्ट नॉलेज होती है कि सपोज ये आइटम बिक रहा है तो इसका एक अंदाजा या अप्रोक्सीमेटली कितना इसका प्राइस होना चाहिए था. ठीक है, फर्म्स को भी पता होता है कि अगर बायर खरीद रहा है तो वो कितने तक उस चीज को खरीद सकता है. तो दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो ये थोड़ा सा बेसिक डिटेल हो गया था. वापस आते हैं इसके ऊपर कि कैसे जो डिजिटल टेक कंपनीज जो हैं वो कंपटीशन को खत्म कर रही हैं. सो यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस टॉपिक इन द न्यूज़पेपर क्वाइट अ टाइम्स that how big tech companies are stifling the free market. तो जैसा कि आप जानते हो इंडिया एक बहुत ही बड़ा डिजिटल मार्केट है एंड अभी करंटली बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव 907 मिलियन यूजर्स बाय 2023 और कुछ सालों में 1 बिलियन यूजर्स हो जाएंगे हम लोग. और जो डिजिटल इकोनॉमी है दिस विल डबल फ्रॉम 2020 टू 2030. सिर्फ 10 सालों के स्पैन में डबल हो जाएंगे. तो अब यहाँ पे जो बिग टेक कंपनीज हैं ये इस टाइप की मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस करके कंपटीशन कर रहे हैं. तो कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस जो है हमें पता होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे 10 आपको एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो है उनके नाम दिए गए हैं
उनका बेसिक मतलब क्या है, तो एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ चीजें सिर्फ नाम से ही पता लग जाएंगी, तो उन पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। जो चीजें नहीं क्लियर होंगी वहां थोड़ा सा हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ओके, तो फर्स्ट इज एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं कि अपने जैसे ऐप स्टोर हो गया एप्पल का या गूगल का प्ले स्टोर हो गया, तो क्या करती है कि आप सिर्फ आप वहीं से पब्लिश कर सकते हो। आप और किसी मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर जाके कोई आप जो है उसको परचेज नहीं कर सकते। तो दिस इज एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन कि आप उसके डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से ही सर्विसेज को परचेज करो। ओके, सो दिस इज वन इशू। तो एंड्रॉइड गूगल का हो गया, और एप्पल का जो एप्पल आईओएस जो है उसके अंदर वो फोर्स करती है कि एप्पल ऐप स्टोर से खरीदो। सो ये कुछ एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस होते हैं। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी। तो कई बार हमने देखा है जो मार्केट प्लेस कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। जैसे प्ले स्टोर पे हम बात करें तो गूगल पे को प्रमोट कर रही है गूगल। सो इस टाइप से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसके मार्केट प्लेस के ऊपर रखे हुए हैं उनके साथ एक तरीके से धोखाधड़ी है। नेक्स्ट, एजेंसी एंड बिल्डिंग एंड टाइपिंग या टाइम इन जनरल। सो डिजिटल फर्म्स क्या करती है, दे फोर्स पीपल टू बाय रिलेटेड सर्विस। तो एक एग्जांपल है जो फूड डिलीवरी एप्स होती है, जोमेटो, स्विगी वगैरह। तो ये रेस्टोरेंट ओनर जो होते हैं उनको फोर्स करती है कि वो एक और ऐप डाउनलोड करे जो कि उनका जो भी सामान आया हो उससे जो डिलीवरी सर्विसेज रिलेटेड है उसको उसके थ्रू वो अपना जो सामान है उसको भिजवाएं। नेक्स्ट, डाटा यूसेज है। तो इन कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज लेगेसी भी एक चीज होती है कि बहुत पुराने टाइम से ये कंपनीज चल रही आ रही है, तो इन्होंने बहुत सारा डेटा ओवर द इयर्स एक्यूमुलेट कर लिया है। सो वहां पे दे कैन गिव दिस यूज दिस डेटा टू बेसिकली गिव पर्सनलाइज्ड एड्स, ठीक है, जो कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे में जो नई कंपनीज है दे विल फाइंड इट मच हार्डर टू पेनिट्रेट द मार्केट, बिकॉज ये जो पुराने प्लेयर्स हैं ये उस डेटा का मोनोपोलिस्टिक यूज कर रहे हैं। फिर है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो जनरली बिग टेक कंपनीज क्या करती हैं, जैसे उन्हें पता लगता है कि कोई नई कंपनी जो है वो तेजी से ग्रो कर रही है या उसमें पोटेंशियल है, तो उसको अपना कंपटीशन बनने से रोकने के लिए वो क्या करते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं। जैसे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को, ओके, या माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया लेट्स से बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है, ठीक है, तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट, प्राइसिंग डीप डिस्काउंटिंग है। तो कंपनीज ई कॉमर्स कंपनीज के साथ स्पेशली ये दिक्कत है कि वो बहुत डीप डिस्काउंट देती है सेल के नाम पे, एंड वो डिस्काउंट जो है वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं उसका इस्तेमाल करके वो डीप डिस्काउंट इसलिए दे रही है ताकि जो लोकल या जो ऑफलाइन प्लेयर्स है दे आर अनेबल टू कम्पीट, एंड जब वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में अपनी एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी इन ई कॉमर्स कंपनीज की। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव टाइप्स। तो आपने देखा होगा कई बार फोन जो है वो एक एक्सक्लूसिवली एक ही वेबसाइट पे मिलता है, तो इस टाइप के एक्सक्लूसिव टाइप्स करके वो बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ जो है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर्स है वो एक जगह चले जाएंगे। फिर सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेंसिंग, ये तो आपको पता ही है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स या गूगल जो है वो अपने रिलेटेड जिन्होंने उनको पेमेंट करी हुई है उनका जो कंटेंट है उनको हायर अप रखते हैं किसी भी सर्च एल्गोरिथम में, कि आप उससे रिलेटेड कोई भी सर्च करोगे तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट आपको दिखाएगा जिसका उन्हें पैसा मिला हुआ है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जैसे क्या करते हैं एप्पल ऐप स्टोर में, वो अगर किसी ऐप को स्क्रूटिनाइज करते हैं और अगर उनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है तो उसको उसके अंदर आने नहीं देते। जैसे MPL एक आपको पता होगा एक गेम था, या एक बार पेटीएम को भी बाहर कर दिया था गूगल ने, बिकॉज उसके ऊपर एलिगेशन थे कि वो बेटिंग को प्रमोट कर रहा है। सो इस टाइप से वो बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है उनको बाहर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं। एंड लास्टली एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है विच इज वेरी जनरल इन नेचर, तो ये आपको पता ही होंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू ये जो बिग टेक कंपनीज है अपनी डोमिनेंस मेंटेन कर रखती है। तो थोड़े से कीवर्ड्स इसमें से उठा लेना ताकि जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो इस टाइप के कीवर्ड्स अगर आप यूज करते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस बिग टेक कंपनीज यूज करती हैं,
to create the monopoly, तो automatically your answer will stand out. Next, अब इससे कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से हमने देखा कि फ्री जो मार्केट है वो तो हर्ट होता ही है, इसके साथ साथ कुछ और कीवर्ड्स है जो हम देख सकते हैं. दिस विल अल्टीमेटली लेड टू रिड्यूस मार्केट डायनामिज्म, जो मार्केट का डायनामिक नेचर है वो थोड़ा कम होगा. इंक्रीज करेगा वेज इनइक्वालिटी एंड वेल्थ कंसेंट्रेशन. तो ये भी आप कीवर्ड इसमें ऐड कर सकते हो. सो अब बात करते हैं इंडिया में अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है कंपटीशन को लेके. जैसे कि आप जानते हो, वी हैव अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. इस कंपटीशन एक्ट को इसीलिए लाया गया था ताकि हम प्रमोट कर सके एक फेयर कंपटीशन इन द मार्केट. एंड 2002 में ये एक्ट आया था, लेकिन ये जो बॉडी थी ये 2009 में बनी थी, इन 2009. और ये सीसीआई जो है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट. सो अगर सीसीआई जो है अपने आप में एक एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट कर सकती है मैटर को, और उसके अंदर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह जजमेंट भी दे सकती है. तो अगर आपको इस बॉडी के डिसीजन से अगर आप सहमत नहीं हो तो आप अपील भी कर सकते हो. तो इसका अपील जो है वो किसको लाया करता है? इट लाइज टू नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, NCLAT. अब ये NCLAT जो है ये ध्यान रखना, दिस डज नॉट कम अंडर दिस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी कंपटीशन एक्ट 2002. दिस इन फैक्ट इज constituted under Companies Act of 2013. तो याद रखना ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे. अब एक टर्म इसमें बार बार आगे भी देखने को मिलेगा कि एक्स पोस्ट अप्रोच है अभी तक हमारे लॉ का. ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है या ये कंपटीशन एक्ट है, इसके अंदर हमारा अप्रोच जो है एक्स पोस्ट अप्रोच है. इसका मतलब क्या होता है कि लॉ जो है वो तभी किसी को पीनलाइज कर सकता है जब एक्चुअली कोई एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हुआ है तब. ओके. और जो जनरली हम पढ़ते भी हैं अंडर आर्टिकल 20, ठीक है, कि जब लॉ बनाया जाता है उसके बाद ही आप किसी को पीनलाइज कर सकते हो, उससे पहले पीनलाइज नहीं कर सकते. क्रिमिनल लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ नहीं बना सकते. ठीक है. तो वही सेम चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है एक तरीके से कि जब तक कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस नहीं होती वी कैन नॉट पेनलाइज इट. लेकिन दिक्कत क्या होती है, ये जो डिजिटल कंपनीज होती हैं, एक तो इनका जो पेस है ये बहुत फास्ट होता है कि बहुत तेजी से इनका जो बिजनेस है वो चेंज होता है और ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से होती है और जो साइज है वो बहुत बड़ा है. तो ऐसे में जब तक हम वेट करते हैं कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो और जब तक उसे रिपोर्ट एक्चुअली पब्लिक नोटिस में आना और फिर उसको रिपोर्ट करने में जो टाइम लगता है, तब तक एक बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका होता है. और बिग टेक कंपनी जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज का एक तरीके से वर्चुअली गला दबा देती है. सो एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे एक ब्राउजर वॉर आप पढ़ना कभी, ब्राउजर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर्स होते हैं. तो इसका एक ब्राउजर वॉर चला था बैक इन 90s. तो जब विंडोज शुरू हुआ था तो विंडोज का डोमिनेंस केवल ऑपरेटिंग सिस्टम में था. ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो वहीं तक डोमिनेंस था. तो उस टाइम 90s के अंदर धीरे धीरे इंटरनेट का राइज होने लगा. इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशन चाहिए होते हैं जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउजर. तो ऐसे में एक वेब ब्राउजर कंपनी थी नेटस्केप करके, जो कि बहुत तेजी से राइज कर रही थी इस वेब ब्राउजर फील्ड के अंदर. तो माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशियली तो नहीं उतरे वो वेब ब्राउजर की गेम के अंदर, लेकिन दे वर वॉचिंग कि ये नेटस्केप जो है एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है. बहुत काफी समय तक उन्होंने एनालाइज किया कि ये नेटस्केप क्या क्या फीचर लाया. एंड एक पॉइंट पे जब उन्हें अच्छे से मालूम हो गया इस पूरे बिजनेस के इनसाइड एंड आउटसाइड डिटेल्स, तो उन लोगों ने अपना एक, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ही एक इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया, जैसे आप जानते होंगे. अब तो नाम एज हो गया उसका, लेकिन उससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था और उसको लॉन्च करके नेटस्केप को खत्म करने की कोशिश की थी. सो जैसा कि आप जानते हो कि विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो गया था. तो उन्होंने क्या किया, क्या अपने जो विंडोज है उसी के साथ वो इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्ट इन देने लगे. तो ऐसे में लोग धीरे धीरे इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरफ जाने लगे एंड स्टार्टेड लिविंग नेटस्केप.
और ये जो सर्विस थी पहले नेटस्केप और या वेब ब्राउजर एक्सेस करने की, ये पहले पेड सर्विस हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि विंडोज के पास काफी पैसा था तो उन लोगों ने ये चीज फ्री में दे दिया और मार्केट एक्वायर कर लिया। तो ये इस चीज से आप समझ सकते हो कि बिग टेक कंपनीज जो है कैसे स्टार्टअप्स का गला दबा सकती है। सो ये ब्राउजर वगैरह आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। नेक्स्ट, इससे और भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे कॉर्नरिंग ऑफ वैल्यूएबल मार्केट इनपुट। तो कोई भी प्लेटफॉर्म जब है वो वर्क तब करेगा जब उसके पास टैलेंटेड वर्कफोर्स हो। सो आज प्ले स्टोर है तो वो प्ले स्टोर सिर्फ गूगल के जो इंजीनियर्स हैं उनकी बनाई हुई ऐप से नहीं वर्क कर रहा। बहुत सारी इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी हैं, इंडिविजुअल कोडर्स जो हैं अपने एंड से भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और उसको डेवलप करने के लिए उन लोगों को एंड्रॉइड सीखना पड़ता है। तो ऐसे में आप बहुत सारे जो कोडर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ले जाके रख दे रहे हो, और बाकी प्लेटफॉर्म पे उनको आने में इसकी वजह से इश्यू होगा। सो दैट इज ऑल्सो वन इश्यू। अब इससे कुछ अगर हम बात करें कि कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दिए इसके अंदर, या एक तरीके से वे फॉरवर्ड क्या दिया कि कैसे हम इन सब चीजों को सही कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि पहला, अगर हमें फेयर, ट्रांसपेरेंट और एक कंटेस्टेबल डिजिटल इकोसिस्टम बना के रखना है इंडिया में, तो उसके लिए हमें जरूरत होगी डिजिटल कंपटीशन एक्ट की। यानी कंपटीशन एक्ट तो है ही हमारे पास, लेकिन एक सेपरेट डिजिटल कंपटीशन एक्ट होना चाहिए तो केवल डिजिटल इकोसिस्टम को टारगेट करे। और यहाँ पे हम एक्स एंटी अप्रोच लेंगे, ठीक है, कि एंटिसिपेट कर लेंगे कि क्या हो सकता है, रादर देन एक्स पोस्ट अप्रोच कि हुआ और फिर हमने एक्शन लिया। पहले से एंटिसिपेट करना और एक्शन लेना है, ताकि ये जो फास्ट मूवर या फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये खत्म हो जाए इन बिग टेक कंपनीज के लिए। नेक्स्ट, डिफाइन करो अ स्मॉल नंबर ऑफ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया या फेसबुक हो गया। तो इन सब कंपनीज को आइडेंटिफाई करो और इनसे एंटिसिपेट करो कि क्या क्या नेगेटिव कंपटीशन अराइज हो सकते हैं, ताकि हम पहले ही से उन्हें स्टॉप कर सके। फिर ग्लोबल हार्मोनाइजेशन होना चाहिए डिजिटल रेगुलेशन का, ताकि इंडियन कंपनीज जो है वो ग्लोबली compete कर सके। हार्मोनाइज कंपटीशन लॉ विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 एंड अंडर ई कॉमर्स एक्ट, मैकेनिज्म टू इंश्योर फेयर कंपनसेशन होना चाहिए कंज्यूमर्स को। रिवैम्प करो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसमें स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केट्स जो है उसके लिए स्किल्ड एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स और अटॉर्नीज की हमें जरूरत है। फिर प्रेस्क्राइब करो एक कोड ऑफ कंडक्ट विद स्पेसिफिक मेजर्स फॉर दी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे आप इंफोग्राफिक में देख सकते हो क्या स्पेसिफिक मेजर्स दिए गए हैं, जिसे अलाउ करना थर्ड पार्टी को कि वो अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा या सॉफ्टवेयर ऐप वहां पे डाल सके। नेक्स्ट, नो कंडीशनल एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेफर्ड स्टेटस, कि आपने आपसे किसी को प्रेफर्ड स्टेटस नहीं देना है। प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूट्रलिटी रखनी है, सभी को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। डोंट फोर्स बिजनेस यूजर और एंड यूजर टू सब्सक्राइब और रजिस्टर। ओके, कि कोई भी सर्विस है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसको जबरदस्ती सब्सक्राइब करने के लिए बाधित नहीं करना है किसी भी कंज्यूमर को। फिर पर्सनल डेटा जो है उसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी है। जैसे अगर आपको पता होगा, आज अगर लेट्स से आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हो, आपने गलती से ई कॉमर्स के ऊपर जाके कोई भी आइटम को सर्च किया, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आपको वो डिफरेंट एप्स के अंदर दिखाने लग जाएगा एड्स के थ्रू। तो दैट्स हाउ योर डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द प्लेटफॉर्म विच इन दिस केस इज एंड्रॉइड। नेक्स्ट, प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सीसीआई को ऑफ एनी इंटेंडेड कंसेंट्रेशन, ठीक है, कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो माल प्रैक्टिस कर रही है और उसके थ्रू वो मार्केट को कैप्चर करना चाहिए तो उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन सीसीआई को होनी चाहिए। नेक्स्ट, नो डिफरेंशिएटिंग इन कमर्शियल कंडीशंस, एंड लास्टली डोंट प्रिवेंट बिजनेस यूजर फ्रॉम ऑफरिंग सेम सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है, ताकि मार्केट जो है वो एक तरीके से फ्रीली और इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। So these were some of the things regarding the Digital Competition Act. इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो आप।
ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. Probably this would be the last topic of the day. Next is legal reforms and ease of doing business. So Ministry of Commerce ने इंट्रोड्यूस किया एक जन विश्वास बिल 2022 के अंदर इन लोकसभा. Now this bill seeks to amend 42 acts administered by 19 different ministries to reduce the compliance burden on individuals and businesses. और जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो टर्म है ये पॉपुलराइज हुआ है वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उससे. सो आगे जाने से पहले थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं. ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करा था सिंस 2003, बट दिस रिपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड इन 2020. मतलब लास्ट एडिशन जो है इसका 2020 में आया था, जिसमें इंडिया का रैंक जो था वो 63 था. एंड इसके अंदर 10 इंडिकेटर्स हैं जो यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ भी है कि क्या क्या डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं इस रिपोर्ट के. तो देख लेना, अभी के लिए हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे. बस ये याद रखना अभी के लिए दिस रिपोर्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड. जब वापस रिपोर्ट चालू होगी तब थोड़े से पैरामीटर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. अब वापस आते हैं इस बिल के ऊपर. सो बहुत सारे एक्ट्स इसके अंदर जो है वो अमेंड होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पोस्ट एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. तो बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स जो हैं वो इसके थ्रू अमेंड होंगे ताकि उन्हें प्रो बिजनेस बनाया जा सके. ठीक है, या बिजनेसेस को उससे ईज हो सके वर्किंग के अंदर. सो इससे बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जैसे एडजुडिकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म होगा, वो भी सिंप्लीफाई होगा. एंड उससे कोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम होगा. एंड जब कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा तो जो माइनर कॉन्ट्रोवर्शन है, डिफॉल्ट है, वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं. एंड इससे टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज सब बचेंगे. नाउ लेट्स लुक इनटू द प्रोविजंस ऑफ द बिल. तो बहुत सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है और उनकी जगह मॉनिटरी जो पनिशमेंट है वो दे दी गई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट है. इसके अंदर अगर आप काउंटरफिट कर देते हो ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क्स हो तो 3 साल की सजा हो जाती है. यहाँ पे इसको केवल फाइन या पेनल्टी के तौर पे रखा गया है 8 लाख रुपीस का. नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज. तो हर 3 सालों के अंदर जो पेनल्टीज डेजिग्नेट की गई है ऑफेंसेस के लिए, दिस विल बी इंक्रीज बाय 10%, और मिनिमम ऑफ 10%, ज्यादा भी हो सकती है बट मिनिमम 10% से इंक्रीज होंगे हर 3 साल में. इसमें अपॉइंट करा जाएगा एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो डिटरमाइन करेगा इन पेनल्टीज को. ये समन कर सकता है इंडिविजुअल्स को फॉर एविडेंस एंड कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरी टू एनी वायलेशन ऑफ द रेस्पेक्टेड एक्ट. फिर एक अपीलेट मैकेनिज्म रहेगा. अगर आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से कोई उसके डिसीजन से शिकायत है तो यू कैन गो टू द अपीलेट बॉडी. ओके, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो अगर इसके अंडर कोई आपको अपील करनी है तो यू विल गो टू एनजीटी विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर. नेक्स्ट, लीगल हर्डल्स क्या है इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के. तो पहला, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं एंड उसकी वजह से जो हर स्टेट का एक डिफरेंट लॉ का फ्रेमवर्क होता है. दिस इम्पोज हर्डल on companies doing business in different states. For example, sale of alcohol in Maharashtra. There is sale of alcohol in Maharashtra, but it is illegal in Gujarat. तो different laws हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनीज को काफी प्रेशर फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर इंडियन कोर्ट्स में जाती है तो एटलीस्ट 3-4 साल तक वो रिजॉल्व नहीं होती है. नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर्डल है बिकॉज इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करने के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज लगती हैं और कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उसको रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर कस्टम ड्यूटीज वेरिंग फ्रॉम 0% टू 150% एंड कई बार उससे भी ज्यादा. फिर उसमें और भी तरह के ड्यूटीज लग जाते हैं जैसे काउंटरवेलिंग, एजुकेशनल सेस, जो डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन इंडिया. नेक्स्ट, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज है कि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है. Although we had brought a act called Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Act 2013 में,
जिसकी वजह से थोड़े इश्यूज कम तो हुए हैं, लेकिन स्टिल लैंड एक्वायर करना इज अ वेरी टीडियस टास्क, बिकॉज आपको डिफरेंट लोगों से परमिशन चाहिए होता है इसके अंदर, और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जिसके चलते केस जो है वो लंबा चलता है। नेक्स्ट लेबर इश्यूज है, तो लैक ऑफ कंसोलिडेटेड लेबर लॉज एज इट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। सो लेबर लॉज के लिए भी अभी हम आगे देखेंगे कि 4 कोड जो थे वो आए थे, बट स्टिल देयर आर सम इश्यूज, बिकॉज लेबर लॉज जो है अभी भी बहुत ज्यादा लेंदी है, और उससे कंप्लाई करना कंपनीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली द कंपनीज दैट आर इन द डेवलपिंग फेज। नेक्स्ट एडजुडिकेशन इश्यूज, तो कोर्ट्स के पास ऑलरेडी पेंडेंसी बहुत है केसेस की, तो ऐसे में केसेस को रिजोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। सो विद दिस जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल, गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू रिजोल्व दिस एडजुडिकेटरी इश्यूज। अब इसके अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए, तो जैसे लेबर लॉज, आपको पता है 4 लेबर लॉज थे जिनको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था बाय रैशनलाइजिंग रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ 29 सेंट्रल लेबर लॉज। तो उन 29 सेंट्रल लेबर लॉज को सब्ज्यूम करके 4 कोड्स के अंदर बनाया गया था, जैसे कोड ऑन वेजेस है, ऑपरेशनल सिक्योरिटी एंड जो हैजार्ड्स है उसके अगेंस्ट एक कोड है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी पे एक कोड है। तो ऐसे 4 कोड्स थे जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये जिससे जो लेबर लॉज है उसको रैशनलाइज करो और कंप्लायंस इंप्रूव करो। डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स हैं फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल केसेस, कमर्शियल कोड एक्ट 2005, एंड ये जो कमर्शियल केसेस होते हैं उनको फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर आईबीसी हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये जो कंपनीज जो है डिफॉल्ट कर जाते थे अपने पेमेंट के ऊपर, और लंबे समय तक ये जो पेमेंट अटका रहता था, उस चीज को फास्टर तरीके से रिजोल्व करने के लिए आईबीसी लाया गया था। नेक्स्ट स्पाइस प्लस, पहले स्पाइस था, अब स्पाइस प्लस हो गया। दिस इज सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉपरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये एक बेसिकली पोर्टल है जहां पे जिसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप मल्टीपल क्लियरेंसेस जो है वो पा सकते हो। तो स्पाइस प्लस पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से क्लियरेंस मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से जो क्लियरेंस है वो भी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और भी बहुत सारी एजेंसीज जो है इनकॉर्पोरेट कर रही है गवर्नमेंट, ताकि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह ये काम कर सके। नेक्स्ट इज श्रम सुविधा पोर्टल। तो दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर लेबर लॉज कंप्लायंस। कोई भी इंस्पेक्शन से रिलेटेड कोई इश्यू होता है या किसी को रिटर्न फाइल करना होता है, तो आप सिंपली इस पोर्टल पे आके रिटर्न फाइल कर सकते हो। So these are some of the other steps that government has taken to improve ease of doing business. Next way forward में ease करो compliance, ठीक है। जेनरिक पॉइंट्स है कि सेंटर और स्टेट को सिस्टमेटिक स्टेप लेने हैं ताकि वो एलिमिनेट कर सके जो भी इश्यूज हो रहे हैं कंप्लायंस के अंदर। नेक्स्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम लोग बना सकते हैं, ताकि जो जुडिशरी है वो फास्ट ट्रैक तरीके से रेजोल्यूशन प्रोसेस को क्लियर कर सके। लैंड एक्विजिशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, लैंड बैंक्स बना सकते हैं ताकि जो कंपनीज है वो इजीली लैंड को एक्सेस कर सके। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं स्पेशली अमंग द स्टार्टअप्स एंड द एमएसएमई जिनको इसका ज्यादा नॉलेज नहीं होता है इन सब लॉस का, तो ताकि वो इन सब का फायदा उठा सके। एंड लास्टली टैक्स हॉलीडेज, सो स्टार्टअप्स जो है उनको टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है। अभी भी बजट जो आया है उसमें भी हमने देखा बहुत सारा टैक्स हॉलीडेज का जो प्रोविजन है वो अभी भी कंटिन्यू रखा गया। So these are some of the ways through which the government is ensuring that इंडिया के अंदर जो ease of doing business है वो अच्छा बना रहे, ठीक है। So with that we're done with this bill, जन विश्वास बिल टू 2022, ठीक है। अभी तक इसमें इतना ही काम का है। So अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।